Okay, so hi guys. Today we are going to be solving the weekly contest 271 of LeetCode. So as you already know that every LeetCode contest consists of 4 problems. Generally the difficulty level is जो पहली problem होती है that is easy. जो बाकी दो problems होती है they are a bit on the medium side, and the last problem is tougher. Sometimes it is like higher medium, and sometimes it is tough. So let's see. Let's start from the first problem. The first problem is rings and roads. So basically what this problem wants us to do is that I will be given a string of length 2n. Okay, there will be a string of length 2n, and it will describe the position of n rings. uh, as you can see in these diagrams, we have 0 to 9 rods, that is we have a total of 10 rods, and on each rod there is a ring. There can be a ring on some rod, or there cannot be a ring on some rod. We don't know, but if there is a ring on any one rod, then it would be like this. Okay, it would be put on the top of it. Okay, so we have been given the position of every ring in this way, that every ith position describes the color of the ring. There are only 3 possible colors. First is color R, which is red, second is color green, and third is color blue. And the next character, that is I plus 1th character, tells us the number of the rod on which that particular ring is present. For example, let's take this example. Okay, so position 0 consists of the color of the ring, right? So position 0 is B, that means the current ring is of blue color. Then the position I plus 1 consists of the number 0. What does this mean? This means that this ring, this blue ring, is present on the 0th rod. Now let's move on to the next ring. Next ring is also of color B, that is color blue, and it is present on the 6th ring. So here is the 6th ring, and there is the blue ring that you can see here. Now let's move on to the next ring. The color of the next ring is green. Okay, and it is present on 0th index, 0th rod. So here you can see that green ring, and so on. Okay, so what we have to tell is, we have to tell the number of rods that consist of rings of all these 3 colors. Like there is a rod I, suppose, and it has ring of color red, color green, and color blue. It does not matter how many rings of each color it has, it should have at least one ring of each color. Okay, so that's it, that is the question. So let's just first solve this example. We were up till this point, right? We had found out the rod number of ring green. So the next ring color is red, and it is present on the 6th rod. So here it is. The next color of the ring is red, and it is present on the 0th rod. So here it is. Next is R, red again, and it is present on the 6th rod. And the last one is green, and it is present on the 9th rod. Okay, so you can see here. So all of the rings are present only on 3 rods, that is 0th rod, 6th rod, and 9th rod. Okay. So out of these 3 rods, which rod has rings of all of these 3 colors? किस रॉड पे तीनों कलर्स की रिंग है? ब्लू भी है, ग्रीन भी है, और रेड भी है. तो यू कैन सी एक ही ऐसा रॉड है, 0th रॉड. तो द आंसर हियर इज 1. Similarly, it goes for the this example. इसको when you will solve it, so this image will come out, and इसमें सारी की सारी रिंग सिर्फ 0th रॉड और 9th रॉड पे. अब ऐसी कौन सा रॉड है जिसपे तीनों कलर की रिंग्स प्रेजेंट है? सो ऑब्वियसली 0th रॉड है. 0th रॉड पे ब्लू भी है, रेड भी है, एंड ग्रीन भी है. हाँ, इसमें रेड 2 है, ब्लू 2 है, और ग्रीन 2 है, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट. ओनली वी केयर अबाउट कि रिंग है या नहीं हर तीनों कलर की. नंबर से हमें कोई मतलब नहीं. ओके, सो द आंसर हियर इज 1. नाउ अब इसमें क्या है? G4, दैट इज G, ग्रीन रिंग इज प्रेजेंट ऑन रॉड 4, बट उसके अलावा और कोई रिंग नहीं है. So you can imagine these 10 rods, and only one ring is present on the 4th rod. So there is no rod that contains rings of all these 3 colors, right? So obviously the answer is 0.
So this problem is not tough. This problem is just a simple implementation. So let's just look at the constants. The constants are the number of rings will be lesser than equal to 100. They will only contain colors RGB, and the position of every ring is going to be from 0 to n 9. Okay. Okay, so this can be solved in a number of ways, but since the constants are very less, I decided to use a vector of sets, right? What I have done is I have declared 10 vectors of set. Okay, because why I did this, because the number of rods are 10, right? So that's why I declared 10 vectors. Now what I am going to do is what this vector is going to store is that for every ith rod, ith vector the color of distinct rings, distinct color of rings, sorry, will contain the distinct color of rings. That was my intention of using the set, because we know that a set data structure cannot have duplicate elements, right? So even if I insert, like in this example, even if I insert two green colored rings into it, only one green value will be present in that ith vector, right? So that's what I want. So simply I just declared a vector of sets, 10 vectors of set of char, because I have been given a string, and the color of the color of the ball is a character. That's why I have declared a set of char. Okay, so after that I just take the length of the string as dot length. Then I do a loop. For int I equal to 0, I is less than n, I plus is equals to 2. So this is pretty straightforward, but you need to understand this point. Why am I doing this? Why I am not using I plus plus or something else? I'm doing I plus 2 because for every I, the ith position consists of the color, whereas I plus 1th position consists of a number that ranges between 0 to 9. Okay, so this is a pair, this forms a pair, right? Color position, color position, color position. So I have to process each pair in every iteration. So I do not want to process my number again, my position again, for the next string, right? So that is why I am doing I plus is equals to 2. So what I simply do is v of s of I plus 1 minus 0 dot insert s of I. So what I am doing is I am just taking the position of this current ring, which is present in I plus 1th index, and I'm subtracting 0 from it. Because if you have a integer in a character variable and you want to get the integer out of it, integer form, okay, so what you have to do, you just have to subtract 0 character. So here I'll get the position of the ring, and at that position I'll just insert the current ring, which is just the color of the ring, right? After that, what I'll do is I declare a variable answer and initialize it with the value 0, because initially I do not have any rod that consists of rings of all the colors. Then I iterate from 0 to 10. 10 is not included because the number of rings ranges from 0 to 9, 9 included. Okay, so what I do is at every rod I just check whether the size of that rod is equal to 3. Now why I am doing this, यहाँ पे मैंने सेट लिया था. ओके, अगर मेरे पास उस करंट रॉड पे तीनों कलर की रिंग्स हैं तो उसका साइज 3 होगा. 3 से ज्यादा जा नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स आर जस्ट आर जी और बी, 3 ही कलर है. ठीक है, अगर 3 साइज है यानी कि इस करंट रॉड पे सभी कलर की रिंग प्रेजेंट है, सो दिस शुड बी काउंटेड इन माय आंसर. अगर उसका साइज 3 नहीं है, अगर उसका साइज 2 है या 1 है, 1 2 या 3, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेट में सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहती है. अगर उसका साइज 3 नहीं है, मतलब उस पे तीनों कलर की रिंग्स प्रेजेंट ही नहीं है. अगर उस पे तीनों कलर की रिंग्स प्रेजेंट नहीं है, देन दैट इज नॉट माय आंसर, so I will not take it. So what I am doing just here, I am checking whether v of I dot size is equal to 3. If it is equal to 3, then this expression will evaluate to 1. I hope you guys know that. And if it is not equal to 3, then this expression will evaluate to uh, you know 0.
let's make it a little simpler. I'll just check if your dot size is equal to 3. I'll just increment answer. It will also work. Okay, so if we run this, okay, correct, and it got accepted. Okay, so now let's move on to the next question. Okay, so this question is sum of subarray ranges. You are given an integer array nums. The range of a subarray of nums is the difference between the largest and smallest element in the subarray. Return the sum of all subarray ranges of nums. A subarray is a contiguous non-empty sequence within an array. Okay. So this question could have been a very good question, but the constraint made it very simpler, because what I have to do is just I have to first I just have to do a simple thing. I just have to make all of the subarrays of my given array, and I just have to get the maximum and the minimum of every subarray, and I just have to subtract minimum from the maximum and add it into my answer. That's it. That's my question. So if the constraint was like nearby, you know, 1 lakh or something greater than that, then this question could have been tough. But the constant here is just 1000. That means that you can solve this problem in O of n square. And you know that you can calculate all of the subarrays of an array in O of n square, right? So this is a pretty simple question. So what I did was I initially took the size of my array, okay, and then I initialized my variable answer to 0. I took long int because the nums of I, the value of nums of I here can range from minus 10 raised to power 9 to 10 raised to power 9. So there can be some problems of overflow, right? So just to avoid those problems, I took long. Now I start a loop from int I equal to 0 to I less than n, I plus plus, and I initialize a variable, two variables. First variable will consist the maximum value in the current subarray, and the next second variable mn will consist of the minimum value in the current subarray. Now I have initialized mx with int min, because see, here I am starting my subarray from position I. Okay, I could have done this like I could have initialized it with v of I, nums of I, but that was not needed. I am starting from position I, right? And I want the maximum value in my mx variable at all times. So I have initialized it with the minimum value, because the next value that I encounter, that is obviously going to be greater than int min. I hope that is clear, right? And the same logic goes for mn. So what I do is I start my loop from int j equal to I, j less than n, j plus plus. So how do you make sub arrays, right? You start from any position I, right? You start from any position I and you keep incrementing your right bound. Suppose your left bound is I, and you keep incrementing your right bound. First your right bound is I, then your right bound is I plus 1, then your right bound is I plus 2, and so on up to n minus 1 if the size of my array is n, right? So same thing I'm doing here. Here my right bound is I, then my right bound will be incremented by 1, and it would become I plus 1. And I'm just taking the maximum of the current number, and I'm adding it here. Correct, cut. Okay, so I'm just so here you can see one thing. Here you can see one thing is that suppose I'm going from my subarray of I to I to a subarray of I to I plus 1. Okay, so if I have to find the maximum value in subarray from I to I plus 1, I can use the result of my maximum from I to I. So what would be the answer if you think like this? Let's take a general case. Okay, my subarray is from I to j. Okay, and now I'm adding j plus 1th element into my subarray, and I want to know the maximum of I to j plus 1th index. I to j plus 1th index.
So if you one possible solution is that you iterate from I to j plus 1 and maintain a variable, and just at every iteration you just take the maximum, and at the end just result the overall maximum. That is one possible solution. Its time complexity will be linear. But what other solution is that if you have the maximum of the subarray from I to j, then you can just compare that maximum with the element present at j plus 1th index, and you can just update your overall maximum, right? This thing, if you have the maximum from I to j and you're comparing with ij plus 1, the time complexity of this solution will be O of 1, because what you are doing, you are just comparing it, right? You're just doing one comparison, so that would be O of 1. So the same logic I am using here. I'm starting from int j equal to I, j less than n, j plus plus, and at every position I am updating my max and min, right? And I'm adding it into the answer, because at every position I'm getting a different subarray, and at the end I'm just returning my answer. So this will work. This was a very easy question, brute force question. Okay, so now let's move on to this question. This question will look like it is very tough, or it is very lengthy, but actually you don't have to do much in this question. So but this question states that Alice and Bob want to water n plants in their garden. Their both of them has a garden. उनके पास एक garden है और उसमें n plants है. ith plant is located at ith position. Okay, मतलब जो दूसरा plant है वो location 2 पे है, तीसरा plant जो है वो location 3 पे है, और जो number है plants के वो 0 से n-1 है, यानी कि zero based indexing है. Okay, so each plant needs a specific amount of water. मतलब हर प्लांट को एक नीड है. सपोज पहले प्लांट को 2 लीटर पानी की जरूरत है, दूसरे प्लांट को 4 लीटर पानी की जरूरत है, लाइक दैट. एवरी प्लांट कैन हैव द सेम नीड और डिफरेंट नीड. ओके, नाउ एलिस एंड बॉब हैव अ वाटरिंग कैन इनिशियली फुल. एलिस और बॉब के पास एक वाटरिंग कैन है जो इनिशियली फुल है, एंड दे स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स. व्हाट दे डू इज एलिस वाटर्स द प्लांट इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एलिस जो है वो 0th इंडेक्स से शुरू करती है, और वो 0th इंडेक्स से इंडेक्स 1 की तरफ जाती है, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन, यानी कि लेफ्ट से राइट जाती है. एंड बॉब जो है वो n-1th इंडेक्स से स्टार्ट करता है और वो पीछे की तरफ आता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट. ओके, और वो एक साथ शुरू कर देता है. ऐसा नहीं है कि पहले एलिस ने शुरू किया फिर बॉब ने, वो दोनों एक साथ शुरू कर देता है. ओके, नाउ सपोज एलिस जो है वो किसी ith प्लांट पे है, और उस ith प्लांट को x अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है, लेकिन एलिस के कंटेनर में x से कम पानी है. हो सकता है बिल्कुल. अगर ऐसा केस है तो उनका जो कैन है, वाटरिंग कैन है, वो एकदम से भर जाता है इंस्टेंटेनियसली. यू हैव टू रीड दिस वर्ड इंस्टेंटेनियसली, यानी कि उसमें कोई टाइम जाया नहीं होता, तभी के तभी, तुरंत के तुरंत वो भर जाता है. ओके, सेम गोज विद बॉब. Second thing, it takes the same amount of time to water each plant regardless of how much water it needs. Now ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लांट की नीड 1 लीटर है और दूसरे प्लांट की नीड 100 लीटर है तो उसको तो 1 सेकंड लगेगा और दूसरे को 100 सेकंड लगेगा. नहीं, दोनों में पानी भरने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. ओके, नाउ वन कैन नॉट रिफिल द वाटरिंग कैन अर्ली. दिस टू, आप अपना जो वाटरिंग कैन है वो पहले नहीं भर सकते. तुम सिर्फ उसी टाइम पे भर सकते हो जब तुम किसी ऐसे प्लांट पे पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारे पास पानी उसकी नीड से कम है. सिर्फ उसी टाइम पे तुम अपना कैन भर सकते हो. Second thing, each plant can be watered either by Alice or by Bob. This is pretty simple. Next thing, in case both Alice and Bob reach the same plant, this can happen, right? This can happen. The one with more water currently in his her watering can should water this plant. So suppose ऐसा होता है कि वो दोनों भरते आए और वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गए, सेम इंडेक्स आई पे पहुंच गए. तो अब लड़ाई शुरू हो सकती है कि भाई उसको कौन भरेगा. ठीक है, तो इन्होंने उस लड़ाई का जो सॉल्यूशन दिया है वो ये है कि अगर वो दोनों पहुंच जाते हैं तो जिसके पास भी ज्यादा पानी है वो उस प्लांट को पानी देगा, और अगर उन दोनों के पास इक्वल पानी है तो एलिस पानी देगी, बॉब नहीं दे सकता. ओके ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो अभी करना क्या है कि हमको एक इंटीजर एरे दिया होगा प्लांट्स का जिसमें n इंटीजर्स होंगे. इन प्लांट्स ऑफ आई में ये स्टोर होगा कि ith प्लांट की कितनी नीड है, यानी कि उसको कितना पानी चाहिए, और दो
दो इंटीजर दिए होंगे, कैपेसिटी ऑफ ए, कैपेसिटी ऑफ बी. कैपेसिटी ऑफ ए will tell us the maximum amount of water in Alice's watering can, and capacity B will tell us the maximum amount of water in Bob's in Bob's watering can. ओके, तो इनिशियली इससे ज्यादा नहीं भर सकता एलिस का कैन, और बॉब का कैन इससे ज्यादा नहीं भर सकता. तो ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. ऐसा कहीं आई डोंट थिंक कॉन्स्टेंट में मेंशन है, नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. Representing the capacity of Alice's and Bob's watering cans respectively, return the number of times they have to refill to water all the plants. So what I have to do is I just have to return the number of times I have to refill, they have to refill, both of them, to water all the plants. So let's look at an example. Okay, so suppose these are the plants 2 2 3 3. Plant 1 needs 2 liter of water, plant 2 needs 2 liter of water, and so on. And the capacity of Alice's vessel is 5, and the capacity of Bob's vessel is 5 also. So Alice starts from 2 and Bob starts from index 3, because 0 1 2 3 it's 0 based indexing. So okay, let me just copy this test case here, copy this test case here, and let me just explain it. So this is my test case. Okay, sorry, this is my test case. Okay, so what I am doing is initially Alice is present at index I, and Bob is present at index 3, which is just nothing but n minus 1, where n is the size of the vector. So what Alice does is, the capacity of Alice is 5. Let's take it as a variable, Alice equal to 5 and Bob equal to 5. This signifies the current amount that is present in the watering can of Alice and Bob respectively. So initially Alice goes to the index I, और वो देखती है कि भाई इंडेक्स आई को तो 2 लीटर पानी की जरूरत है, और मेरे वाटरिंग कैन में 5 लीटर पानी है. सो इट्स ओके, आई कैन जस्ट water that plant, and I can increment my pointer to 1, and my my capacity of my watering can gets updated to Ls minus B of I. I'll increment it later. Okay, Ls equal to my B of I, which is 5 minus 2 equal to 3, and here I will become 1. Okay, नाउ सेम थिंग बॉब के साथ होती है. बॉब जाता है यहाँ पे, ठीक है, बॉब ये देखता है कि भाई इसकी जो जरूरत है वो 3 है और मेरे पास करेंटली 5 है, तो मैं भी यही कर सकता हूँ. बॉब का अमाउंट हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, एंड बॉब का करंट पॉइंटर हो जाएगा j इक्वल टू 2, बिकॉज बॉब इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसका पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा. एलिस इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो उसका पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो इंडेक्स, फिर एलिस यहाँ पे आ जाती है i इक्वल टू 1 पे, देखती है कि भाई इसको 2 लीटर पानी की जरूरत है, और मेरे जग में, मेरे वाटरिंग कैन में करंटली 3 लीटर पानी है. सो इट्स ओके, आई कैन जस्ट गिव रिक्वायर्ड अमाउंट to this plant, and I can update my watering can to 3 minus 2 to 1, and it will update it I to 2. Also Bob will go there. Bob देखेगा कि भाई j इक्वल टू 2 को 3 की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो 2 लीटर पानी है, तो मैं यहाँ पे उसको पानी नहीं दे सकता रिफिल किए बिना. बॉब क्या करेगा? बॉब अपना जो वाटरिंग कैन है उसको रिफिल कर लेगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफिल्स रिक्वायर्ड, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स टेक इट एज आंसर. ये आंसर जो है, दिस सिग्निफाइज द नंबर ऑफ रिफिल्स रिक्वायर्ड. अगर ये है यहाँ पे मैं बॉब का जो वाटरिंग कैन है वो फुल करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को मेरा आंसर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिफिल मुझे रिक्वायर हो गया. अब मैंने बॉब को रिफिल किया, अब फिर बॉब जो है वो उसको इतना पानी दे देगा, तो बॉब का जो काउंटर हो जाएगा बॉब इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, एंड इट्स पॉइंटर विल बिकम j इक्वल टू 2 minus 1 equal to 1.
सो अब जे जो है वो 1 पे आ गया, आई जो है वो 2 पे आ गया, आई जो है वो बॉब के आगे निकल चुका है, जे जो है उसके पीछे आ चुका है, तो दिस मीन्स कि हम सारे के सारे प्लांट्स कवर कर चुके हैं, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट एंड आवर लूप. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. Okay, so okay, so we just let's move on to the code. So code, it's a very simple problem, just implementation की problem है. So पहले मैंने क्या किया कि मैंने पहले वेक्टर v का साइज ले लिया int n equal to v without size, एंड मैंने दो पॉइंटर्स ले लिए i equal to 0 and j equal to n minus 1. I equal to 0 जो है वो ls के लिए है. I signifies the position of ls, the position of ls, and j signifies the position of bob. Okay. int answer equal to 0, जैसे मैंने ऊपर बताया था, it is the number of times refill is required. And in Alice and Bob, Alice is Alice के अभी कंटेनर में कितना पानी है, and Bob variable will store Bob के कंटेनर में भी कितना पानी है. So what I am doing is I am doing a loop while I is less than j, because जैसे ही I जो है वो greater than or equal to j हो जाएगा, greater than j हो जाएगा, उस टाइम पे हमारे सारे प्लांट्स कवर हो जाएंगे, और जब वो इक्वल टू हो जाएगा तो उसके लिए मैंने कंडीशन अलग से लिखी है, जस्ट टू मेक द कोड मोर सिंपलर. तो while i is less than j, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि if v of i is greater than ls, यानी कि जो करंट प्लांट की नीड है, क्या वो मेरे कंटेनर में जितना पानी है उससे ज्यादा है क्या. अगर ऐसा केस है तो मैं एलिस की कैपेसिटी जो है वो, एलिस का जो कैन में पानी है वो अपडेट करके उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रख दूंगा. सिंस मैंने उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पानी रखा है तो मेरे को आंसर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो गुड. सो मैं आंसर प्लस प्लस कर दूंगा, और फिर एलिस में से जितना भी पानी उसको चाहिए था उस प्लांट को वो दे दूंगा और अपडेट कर दूंगा. अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं है, जो प्लांट की करंटली नीड है वो लेस देन या इक्वल टू है जितना अभी मेरे कैन में पानी है, तो आई कैन जस्ट सिंपली डिक्रीमेंट द v of i from my current from my can. Same thing I'll do for Bob. I'll check if v of j is greater than Bob, and I'll just do Bob. I'll update update the amount of water in watering can of Bob to its maximum capacity. I'll just increment my answer, and I'll just decrement the amount of water in the can of Bob by v of j. Otherwise, I don't have to refill my Bob container. I can just subtract v of j from it, and then I will do I plus plus j minus minus, because I plus plus because Alice is moving from left to right, j minus minus because Bob is moving from right to left. Okay. Okay. Now at the end I have to check for the case where I is equal to j, यानी कि वो दोनों के दोनों एक ही प्लांट पे आके रुक गए, बिकॉज ऐसा हो सकता है, राइट. इन्होंने ऐसा बोला है कि इन केस बोथ एलिस रीच द सेम प्लांट, बोथ एलिस एंड बॉब रीच द सेम प्लांट. सो अगर ऐसा होता है तो भाई उन्होंने दो केस दिए थे कि अगर वो दोनों इक्वल है, इफ एलिस के कंटेनर में जितना पानी है वो बॉब के कंटेनर जितना ही है, तो मुझे क्या करना है, उसको पानी एलिस देगी, वैसे बॉब भी दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट एलिस देगी सपोज. तो एलिस दे रही है तो मैं बस ये चेक कर लूंगा कि भाई एलिस के कंटेनर में अभी जितना पानी है क्या वो मेरे करंट प्लांट की नीड से कम है. अगर वो कम है तो मैं बस आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आंसर प्लस प्लस. आई डोंट हैव टू अपडेट एलिस वेरिएबल है, बिकॉज आगे मुझे उसकी नीड नहीं है. आई कैन अपडेट इट बट उसकी नीड ही नहीं है तो मैं नहीं कर रहा. अगर एलिस और बॉब इन दोनों का पानी इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं ये चेक करूंगा कि भाई जिसका भी मैक्सिमम पानी है, चाहे एलिस के कैन में चाहे बॉब के कैन में, जिसके भी कैन में मैक्सिमम पानी है, अगर वो मैक्सिमम पानी v ऑफ i से कम है तो मैं आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि अगर दोनों का पानी इक्वल नहीं था तो जिसके पास भी सबसे ज्यादा पानी था वो पानी देने वाला था, तो अगर वो सबसे ज्यादा पानी जिसके पास है वो भी कम है मेरे करंट प्लांट की नीड से, सो आई विल जस्ट इंक्रीमेंट माय आंसर, बिकॉज इस टाइम पे भी मेरे को रिफिल चाहिए होगा, एंड एट द एंड आई विल जस्ट रिटर्न माय आंसर. नाउ why I am not checking whether my need is greater than capacity of A or capacity of B, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट में मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ प्लांट्स ऑफ आई इज गोइंग टू बी लेस देन कैपेसिटी ए एंड कैपेसिटी बी, दोनों की कैपेसिटी से कम होगा, तो आई डोंट हैव टू चेक दैट. बाकी यहाँ पे ओवरफ्लो की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, बिकॉज द लेंथ ऑफ द प्लांट इज 10⁵, एंड इन द वर्स्ट केस मुझे हर प्लांट में रिफिल करना होगा, तो मेरे आंसर की वैल्यू कभी भी 10⁵ के आगे नहीं जा सकती.
सो दैट्स इट, इतने में हो जाएगा. सो ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू नो कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने. आई गेस नहीं करी है, मतलब कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं है. एक्सेप्टेड. ओके, so let's move on to the next question. Yeah, this question is a good question. This question requires some knowledge of prefix sums. That's it. अगर तुमको prefix sum पता है, you can solve this question. Nothing else. You don't need anything else. Okay, so पहले इस question को समझते हैं. The name is maximum fruits harvested after at most k steps. Okay, so ये क्या कह रहा है कि एक infinite x axis दी हुई है तुमको. x axis horizontal line, और उस पे कुछ fruits रखे हुए हैं. किसी पोजीशन ऑफ आई पे कुछ अमाउंट ऑफ आई नंबर के फ्रूट्स रखे हैं. मतलब एक 2D इंटीजर एरे दिया होगा फ्रूट्स करके, और फ्रूट्स ऑफ आई विल कंटेन 2 इंटीजर्स, पोजीशन ऑफ आई एंड अमाउंट ऑफ आई. पोजीशन ऑफ आई पे अमाउंट ऑफ आई इतने एप्पल्स रखे हुए, ऑरेंजेस, वट एवर यू वांट टू से. ओके, उतने फ्रूट्स रखे हुए. ओके, सो अब इसमें ये भी दे रखा है कि फ्रूट जो है वो ऑलरेडी पोजीशन से सॉर्टेड है. इसका हमें कहाँ यूज पड़ेगा, आई विल टेल यू. हमें यहाँ पे सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट वो अपन सॉल्यूशन में आएंगे तब बताऊंगा. एंड ईच पोजीशन आई इज यूनिक. हर पोजीशन आई यूनिक है, बिकॉज कोई सेंस नहीं है कि वो एक ही पोजीशन दोबारा रिपीट करे. कर सकते हैं बट इट्स ऑल राइट, मतलब उससे कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ने नहीं वाला था क्वेश्चन का. तो यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर स्टार्ट पोजिशन एंड इंटीजर के. 2 इंटीजर और दिया हुआ है, स्टार्ट पोजिशन एंड इंटीजर के. इनिशियली यू आर एट द पोजिशन स्टार्ट पॉज. तो मेरी जो स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्ट पोजीशन से हो रही है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 3 4 वैसे करके x इक्वल टू स्टार्ट पोज है जहां पे मैं इनिशियली खड़ा हूँ. नाउ फ्रॉम एनी पोजीशन यू कैन आइदर वॉक टू द लेफ्ट और राइट. तो मैं सपोज ith पोजीशन पे हूँ, तो मैं i से i माइनस 1th पे भी जा सकता हूँ और i प्लस 1th पे भी जा सकता हूँ. It takes 1 step to move 1 unit on the x-axis and you can walk at most k steps in total. So सपोज मैं i से i प्लस 1th पे चला गया तो मैंने एक स्टेप यूज कर लिया. i से i माइनस 1th पे आ गया तो मैंने एक स्टेप यूज कर लिया. और मैं एट मैक्स k स्टेप चल सकता हूँ. एट मोस्ट ऐसा नहीं लिखा कि मुझे एग्जैक्टली k स्टेप चलने हैं, इसमें लिखा है मुझे एट मोस्ट k स्टेप चलना है. ओके ओके, सो फॉर एवरी पोजिशन यू रीच यू हार्वेस्ट ऑल द फ्रूट्स एट दैट पोजीशन. सपोज x इक्वल टू 5 पे 4 फ्रूट रखे थे और मैं x इक्वल टू 5 पे पहुंच गया, तो जितने भी फ्रूट वहां पे थे, 4 फ्रूट थे, वो सबके सब मैंने उठा के अपनी जेब में डाल ली. ठीक है, एंड वहां पे जो फ्रूट्स थे वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो गए. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स यू कैन हार्वेस्ट. सो सिंपल भाषा में दोबारा एक बार समझते क्वेश्चन. एक लाइन दी हुई है, एक्स एक्सिस लाइन दी हुई है, एंड उस पे हर मतलब कुछ पोजीशंस पे कुछ फ्रूट रखे हुए हैं. ठीक है, कितने फ्रूट किस पोजीशन पे आई नो. अब मुझे ये पता है कि भाई मैं स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू कर रहा हूँ और मैं मैक्सिमम के स्टेप्स चल सकता हूँ. तो मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम के स्टेप्स चलते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने कलेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज द क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है. सिर्फ इतना ही है कि मैं जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे वहां से के स्टेप्स लेने मैक्सिमम, और इतने स्टेप्स लेके मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने कलेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. तो इसमें क्या है, फ्रूट्स वेक्टर कंटेन्स 2,8 6,3 8,6. so 2,8 सिग्निफाइज कि पोजीशन 2 पर 8 फ्रूट्स रखे हैं. सो पोजीशन 2 पर 8 फ्रूट्स रखे हैं. 6,3 सिग्निफाइज पोजीशन 6 पर 3 फ्रूट्स रखे हैं. ओके, एंड 8,6 सिग्निफाइज कि पोजीशन 8 पर 6 फ्रूट्स रखे हैं. ठीक है, नाउ मेरी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो है 5. यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड k इज इक्वल टू 4, यानी कि मैं मैक्सिमम 4 स्टेप्स चल सकता हूँ. ओके, सो एक ऑब्जर्वेशन जो तुमको यहां से दिख रही होगी कि मैं 5 से मैक्सिमम 1 तक जा सकता हूँ, और 5 से लेफ्ट में 1 तक जा सकता हूँ, और 5 से मैक्सिमम 9 तक जा सकता हूँ राइट में. इसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है. इसके आगे चाहे हजारों फ्रूट रखे हो, आई कैन नेवर कलेक्ट दम, राइट. सो मेरा जो सॉल्यूशन स्पेस है वो यही कहीं लाया करेगा 2k रेंज में. 2k रेंज, बिकॉज स्टार्टिंग पोजीशन से अगर मैं k यहाँ तक जा सकता हूँ, और स्टार्टिंग पोजीशन से मैं k यहाँ तक जा सकता हूँ, तो ये k लेंथ हो गई, ये k लेंथ हो गई. तो ये जो 2k लेंथ है, इसी में कहीं मतलब मेरा ऑप्टिमल पाथ एग्जिस्ट करेगा. ओके,
सो इस केस के लिए ऑप्टिमल पाथ्स क्या क्या हो सकते हैं, सारे के सारे एक बार पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, मैं तो यहाँ पे 8 स्ट्रॉबेरीज है, तो मैं तो पहले 8 स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो अमाउंट ज्यादा है इन दोनों से, इसमें 3 है इसमें 6 है, तो ये सबसे ज्यादा है। तो मैं 8 कलेक्ट करने जाता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 5 से 4 पे जाता हूँ, 4 से 3 पे जाता हूँ, 3 से 2 पे जाता हूँ। तो मैंने कितने स्टेप्स चले, 5 से 4 गया तो 1, 4 से 3 गया तो 2, 3 से 2 गया तो 1। मैं टोटल 3 स्टेप्स चल चुका हूँ, यानी कि अब नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टेप्स कितने हैं, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे ये कलेक्ट कर लिया, तो मेरे नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, कलेक्टेड फ्रूट्स 8 हो गए। अब मेरे पास एक ही स्टेप बचा है, तो चाहे मैं यहाँ चला जाऊँ चाहे मैं यहाँ चला जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं और फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में मेरे पास आंसर आता है इक्वल टू 8। ओके, चलो अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में मैं क्या सोचता हूँ, मैं जाता हूँ कि भाई मैं 5 से जो है मैं 3 तक चला जाता हूँ, और फिर मैं वापस आके इनमें से किसको कलेक्ट कर लूंगा। तो ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई फ्रूट नहीं है, राइट। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई फ्रूट नहीं है, इस केस के लिए बात कर रहा हूँ। इस केस में मेरे पास यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं है, तो ये यूजलेस होगा कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं और कुछ कलेक्ट किए बिना वापस आ जाऊं, राइट। तो ये यूजलेस है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये भी केस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं 5 से 4 पे जाता हूँ 1 स्टेप, 4 से 3 पे जाता हूँ 2 स्टेप, तो 2 स्टेप चले गए, अब मेरे पास 2 स्टेप बचे हैं। तो 2 स्टेप में मैं यहाँ तो यहाँ पे जा सकता हूँ, 8 फ्रूट कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं वापस आ सकता हूँ, वापस भी आया तो मैं यहीं पे वापस आ पाऊंगा 3 4। तो मैं यहाँ पे कुछ कलेक्ट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट केस में सपोज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 5 से पहले 4 पे जाऊंगा, फिर मैं इस तरफ चला जाऊंगा। तो सपोज मैंने ये ट्राई किया, मैं 5 से पहले 4 पे गया 1 स्टेप, फिर 4 से वापस यहाँ पे आया 2 स्टेप, फिर यहाँ से गया 3 स्टेप, और यहाँ 3 स्टेप पे आया तो मैंने ये कलेक्ट कर लिया, 3 फ्रूट हो गए करेंटली। और 6 से मैं यहाँ पे गया 4 स्टेप टोटल हो गए। तो अभी इस पाथ में यहाँ से यहाँ पर जाने में टोटल में कितने फ्रूट कलेक्ट कर पाया, 3। तो अभी तक मेरा आंसर, मैं 8 फ्रूट कलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये मेरा ऑप्टिमल आंसर नहीं है। तो अभी मेरा जो करंटली मैक्सिमम आंसर है दैट इज 8। अब मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार लेफ्ट में जाते ही नहीं है, चलो राइट में ही चल देते हैं स्टार्टिंग से। तो ठीक है, राइट में चल देते हैं। तो मैंने एक स्टेप लिया, मैं 6 पे आया, यहाँ पे 3 फ्रूट है मैंने कलेक्ट कर लिया, तो करंटली मेरा आंसर हो गया 3। इस पाथ के लिए आंसर हो गया 3। फिर मैं 6 से 7 पे गया, 7 पे कोई फ्रूट ही नहीं है तो मैंने कुछ नहीं किया, और मैं अभी तक 2 स्टेप चल चुका हूँ। 7 से मैं 8 पे गया, 8 पे मेरे पास 6 फ्रूट है, मैंने उसको कलेक्ट कर लिए। ऑलरेडी मेरे पास 3 फ्रूट थे, 3 में मैंने 6 डाल दिया, तो 3 + 6 = 9 हो गया, और स्टेप अभी तक मेरे 3 हुए। अब जो एक स्टेप बचा है उससे चाहे मैं लेफ्ट में चला जाऊं चाहे मैं राइट में चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ना तो 7 पे फ्रूट है ना ही 9 पे फ्रूट है, तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर मेरा मैक्सिमम इस पाथ पे आया, जो कि है 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। सो एट द एंड माय फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 9, राइट। सो मैंने किया क्या, अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। तुम स्टार्ट पोजीशन पे खड़े हो, बस ये देखो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो पूरा लेफ्ट में ही के स्टेप्स जा सकते हो, सही बात है, लेफ्ट में ही के स्टेप्स जा सकते हो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, लेफ्ट में k-1 स्टेप गए, और जितने भी स्टेप तुम्हारे पास बचे तुम यहाँ पे ले आए। k-2 स्टेप्स गए, फिर जितने भी तुम्हारे पास स्टेप बचे तुम यहाँ पे आ गए। k-3 गए, जितने भी बचे तुम यहाँ पे आ गए, एंड द सेम साइकिल रिपीट्स। दैट्स इट। तुम्हें हर पॉइंट पे, जैसे स्टार्ट पोजीशन से तुम के स्टेप्स इधर गए, पहले तो लेफ्ट में तुम के स्टेप जा रहे हो, k-1 k-2 ऐसे हर पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली। और उसके बाद ये कवर करने के बाद जितना भी डिस्टेंस तुम लेफ्ट में कवर करना चाहते थे, तुमने वो डिस्टेंस कवर कर लिया। वो डिस्टेंस कवर करने के बाद तुम्हारे पास कुछ अमाउंट बचेगा कि भाई इतने स्टेप्स बचेंगे, अभी भी इतने स्टेप्स है, मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ। उन स्टेप्स को तुम राइट जाने के लिए यूज कर लो, राइट। और इन सभी पाथ्स में से जो भी मैक्सिमम निकल के आता है वो मैक्सिमम ले लो। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि सपोज तुम 5 से यहाँ पे आ गए, थर्ड पोजीशन पे आ गए, तो अगर तुम यहाँ से डिसाइड करते हो कि अब तुम्हें राइट में फ्रूट्स कलेक्ट करना है, तो तुम्हें ये भी देखना होगा कि तुम्हें 3 से वापस 5 पे जाना होगा। तो जितना स्टेप्स तुम्हें यहाँ तक आने में लगे थे, उतने ही स्टेप्स तुम्हें यहाँ से वापस जाने में लगेंगे। ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है बस, और कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखनी है। सो एग्जाम्पल अपन ने समझ लिया, चलो एक बार ये वाला एग्जाम्पल
ये वाला एग्जांपल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट चलो कोड पे मूव ऑन करते हैं, कोड से तुम समझ जाओगे। ओके, सो पहले एक बार कांस्टेंट पर नजर मार लेते हैं। फ्रूट्स की जो लेंथ है वो 10⁻5 है। 10⁻5 का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन एन स्क्वायर में सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन ओ ऑफ एन में या ओ ऑफ एन लॉग एन में सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, फ्रूट्स ऑफ आई डॉट लेंथ इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो, हर आई पे दो चीज होंगी, पोजीशन और उस पोजीशन पे कितने फ्रूट्स हैं। दूसरा, स्टार्ट पोज एंड कॉमा पोजीशन ऑफ आई इज लेसर देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन जो मेरी नंबर, उन्होंने बोला तो है कि मेरी जो एक्स एक्सिस है वो इन्फानाइट है, लेकिन मैं, मेरी जो भी पोजीशन फ्रूट्स में दी होगी वो 2 इंटू 10⁻5 से बड़ी नहीं होगी, तो मेरा सॉल्यूशन स्पेस भी वही तक रह जाएगा, उसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इन लोगों ने इन्फानाइट एक्स एक्सिस दिया था, ये किसी यूज का नहीं रहा। ओके, फिर पोजीशन ऑफ आई माइनस वन इज लेसर देन पोजीशन ऑफ आई, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला था कि फ्रूट्स इज ऑलरेडी सॉर्टेड बाय पोजीशन आई इन असेंडिंग ऑर्डर। अमाउंट ऑफ आई इज लेसर देन इक्वल टू 10⁻4, की हर पोजीशन पे मैक्सिमम 10⁻4 फ्रूट्स हो सकते हैं। एंड k इज लेसर देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5, की मैक्सिमम मैं इतने ही स्टेप्स चल सकता हूँ, इससे ज्यादा स्टेप नहीं चल, इतने इससे ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे मेरे पास। ओके, सो सिंस इन्होंने मेरे को दे रखा है कि भाई मेरी मैक्सिमम पोजीशन 2 इंटू 10⁻5 हो सकती है, तो मैंने एक डिक्लेयर कर लिया अपनी मैक्सिमम पोजीशन का कांस्टेंट इन मैक्स एन इक्वल टू 2e5 + 5। ओके, सो व्हाट दिस सिग्निफाइज इज कि भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर है इतनी लेंथ का, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मैंने 5 एक्स्ट्रा लिया है, ये मतलब सेफ साइड के लिए हमेशा ले लेते हैं, बस इससे कोई फर्क नहीं आता है। तो मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया मैक्स ऑफ एन, इतने साइज का, यानी कि ये हर कोऑर्डिनेट कंटेन कर रहा है 0 से लेके 2 इंटू 10⁻5, 2 इंटू 10⁻5 तक। Okay, so then I just loop on the input fruits of I and I check that for uh, every input like fruits of I auto करके मैंने लिया, तो fruits of I जो है वो position में आ रहा है। pose is actually, pose here contains fruits of I and pose of 0 contains the position and pose of 1 contains the number of fruits at position of 0. So what I do is I just do place the number of fruits एट पोजिशन ऑफ 0। हाँ, सो मैंने यहाँ पे कहा था कि सॉर्टेड की हमको जरूरत क्या है, सॉर्टेड की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ रही कि अगर सॉर्टेड नहीं दिया होता तो हमको इसको सॉर्ट करना पड़ता अपने इनपुट को, तो उसमें n log n लग जाता टाइम, बट इन्होंने ऑलरेडी सॉर्टेड दिया, तो ये क्वेश्चन ओ ऑफ n में ही हो जाता है। बस ये यूज है, उसके अलावा कोई और यूज नहीं है। तो v ऑफ पोज ऑफ 0 इज इक्वल टू पोज ऑफ 1, तो मैंने बस अपने वेक्टर में पोजिशन ऑफ 0 पे पोजिशन ऑफ 1 फ्रूट्स रख दिए, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने दो वेक्टर लिए, वेक्टर इंट लेफ्ट एंड वेक्टर इंट राइट। ऐसा क्यों किया वो देखते हैं। मैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से पहले के लेंथ यहाँ पे जाऊंगा, कुछ ith लेंथ यहाँ पे जाऊंगा, और फिर मैं वापस अपनी स्टार्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा। सेम मैं राइट के लिए करूंगा, राइट से मैं यहाँ आई लेंथ जाऊंगा और फिर आई लेंथ से वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, और जो भी मेरे पास फिर अमाउंट बचेगा मैं इस तरफ चल दूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो जितने भी इस आई लेंथ में फ्रूट्स थे वो सब मेरे को कलेक्ट करना है, वो सब कलेक्ट हो जाएंगे। तो उनका ध्यान रखने के लिए कि वो कलेक्ट हो जा रहे हैं और उनमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रीफिक्स सम्स यूज कर सकता हूँ। प्रीफिक्स सम्स कैसे? सपोज मैं यहाँ से सपोज मैं एक इंडेक्स आई से लेके अपनी स्टार्ट पोजीशन तक नंबर ऑफ फ्रूट्स रख रहा हूँ। तो सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं आई लेंथ स्टार्ट पोजीशन से लेफ्ट में जाऊंगा, तो मुझे करना क्या है, मुझे बस इसका सम चाहिए कि भाई इस रेंज में कितने फ्रूट्स है, और मैंने ऑलरेडी ये प्रीफिक्स सम में कैलकुलेट कर रखा है। मेरा जो प्रीफिक्स सम है लेफ्ट प्रीफिक्स सम, वो स्टोर कर रहा है कि आई से लेके स्टार्टिंग पोजीशन तक कितने फ्रूट्स है। तो आई कैन जस्ट गेट द अमाउंट इन कांस्टेंट टाइम ओ ऑफ 1, मुझे आइट्रेट नहीं करना पड़ेगा, और मुझे आइट्रेट नहीं करना पड़ेगा तो एक एक्स्ट्रा लीनियर फैक्टर मेरे सॉल्यूशन में नहीं आएगा, राइट। सो इसीलिए मैं प्रीफिक्स सम्स यहाँ पे यूज करूंगा। प्रीफिक्स सम बस तो इसके लिए मैंने एक लेफ्ट और राइट वेरिएबल किया है। लेफ्ट वेक्टर क्या करेगा, इट विल स्टोर द प्रीफिक्स सम फ्रॉम आई टू स्टार्ट। प्रीफिक्स सम इज नंबर ऑफ फ्रूट्स, कि आई से लेकर स्टार्ट पोजीशन तक कितने फ्रूट्स हैं, एंड सेम राइट के लिए। राइट लेकिन क्या करेगा, राइट करेगा स्टार्ट पोजीशन से आई तक कितने फ्रूट है। ओके, सो इट विल स्टोर द प्रीफिक्स सम फ्रॉम स्टार्ट टू आई। ओके, ith पोजीशन पे जो right of I will contain the fruits from start to I. Okay, so starting में
दोनों के दोनों मैं इनिशियल पोजीशन स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ, तो लेफ्ट ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू वी ऑफ स्टार्ट एंड राइट ऑफ स्टार्ट इक्वल टू वी डॉट स्टार्ट, यानी कि दोनों की स्टार्ट पोजीशन पे कितने फ्रूट्स है, जितने मेरी स्टार्टिंग पोजीशन पे फ्रूट है तो वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कैलकुलेटिंग द प्रीफिक्स सम फॉर लेफ्ट एंड राइट वेक्टर रिस्पेक्टिवली. So what I do is I start from int I equal to start minus 1, I greater than equal to 0, I minus minus, and here left of I becomes v of I plus left of I plus 1. uh, I hope you know how to calculate prefix sums, but if you don't know, then what I do is start position से मैं I पे आ रहा हूँ, ठीक है, start position से मैं I पे आ रहा हूँ, एंड यानी कि I plus 1 से लेके start position तक मैं ऑलरेडी prefix sum कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, अब मैं एक तरीका तो ये है कि भाई मैं आई से स्टार्ट पोजीशन तक करना है, तो मैं एक और लूप लगा दूं आई से लेके स्टार्ट पोजीशन तक और उसको ऐड करता जाऊं. नहीं, मुझे ये नहीं करना. मैं क्या करूंगा कि भाई आई पे जितने फ्रूट्स है वो ऐड कर दूंगा, प्लस जो मेरा प्रीफिक्स सम आई प्लस 1 से लेके स्टार्ट पोजीशन तक है, तो वो कहाँ है, वो लेफ्ट ऑफ आई प्लस 1 में है. लेफ्ट ऑफ आई प्लस 1 में आई प्लस 1 से लेके स्टार्ट पोजीशन तक फ्रूट्स है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिए, एंड लेफ्ट ऑफ आई बिकम्स वी ऑफ आई प्लस लेफ्ट ऑफ आई प्लस 1. सेम थिंग फॉर राइट ऑफ आई. राइट ऑफ आई में स्टार्ट पोजीशन से मैं आई पे जा रहा हूँ, तो आईएथ इंडेक्स तक मेरे को अगर फ्रूट्स चाहिए तो मुझे ये जानना है कि भाई स्टार्ट से लेके आई प्लस 1 तक कितने फ्रूट्स आए, तो वो राइट ऑफ आई माइनस 1 में होंगे, एंड देन मैं जस्ट अभी करेंटली पोजीशन पे मेरे कितने हैं वो वी ऑफ आई है, एंड राइट ऑफ आई में उतना हो जाएगा, ठीक है. अब आती है अपनी सारी प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब मेरे को आंसर कैलकुलेट करना है. सो इतना पक्का है कि अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा के 0 है या 2 इंटू 10⁵ है, मैं हमेशा जितने फ्रूट्स मेरी स्टार्टिंग पोजीशन पे है वो हमेशा कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट. तो इसलिए मैं अपने आंसर को वी ऑफ स्टार्ट से इनिशियलाइज कर रहा हूँ. आई होप इट इज क्लियर, राइट. ओके, नाउ ये जो लूप है, ये दो लूप लगाए गए हैं मैंने. ये दो लूप इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ जितना जा सकता हूँ, और उसके बाद सेकेंड लूप में मैं राइट की तरफ पहले जा रहा हूँ. ओके, बस ये है. तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ के कॉमा स्टार्ट आई प्लस प्लस. अब ये क्यों किया मिनिमम ऑफ के कॉमा स्टार्ट, बिकॉज मैं स्टार्ट पोजिशन पे खड़ा हूँ. मैं स्टार्ट पोजिशन से कितना लेफ्ट में जा सकता हूँ, मैं या तो स्टार्ट पोजिशन से 0th पे जा सकता हूँ, या 1 पे जा सकता हूँ, या 2 पे जा सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 0th पे ही जा सकता हूँ. 0th पोजीशन के पीछे तो मैं नहीं जा सकता, करेक्ट है. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी पोजीशंस है वो 0 से लेकर 2 इंटू 10⁵ तक है, तो आई डोंट हैव टू केयर कि भाई 0 के इस तरफ क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं, तो मैं मैक्सिमम 0 तक ही जाऊंगा, है ना. तो अगर मेरा के बहुत बड़ा है, तो अगर मैं स्टार्ट में से के को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो नेगेटिव हो जाता. तो उस केस के लिए मैं मिनिमम ऑफ के कॉमा स्टार्ट कर रहा हूँ. और अगर मेरा के स्टार्ट से छोटा है, यानी कि के ही सपोज 1 है और मेरा स्टार्ट 5 है, तो मैं 5 से मैक्सिमम 4 तक जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं उसमें मैक्सिमम के सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो बस इसके लिए कि वो वैल्यूज नेगेटिव ना हो जाए, इसके लिए मैं मिनिमम तक जा रहा हूँ. ओके ओके, नाउ अब ये आई जो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि मैं अपनी स्टार्ट पोजीशन से कितना लेफ्ट जा रहा हूँ. यानी कि अगर आई इक्वल टू 0 है तो मैं स्टार्ट से 0 पोजीशन लेफ्ट जा रहा हूँ, 0 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ. अगर आई इक्वल टू 1 है तो मैं स्टार्ट माइनस 1 तक जा रहा हूँ. आई इक्वल टू 2 है तो मैं स्टार्ट माइनस 2 तक जा रहा हूँ. सॉरी, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो अगर मैं स्टार्ट से आई पोजीशन इस तरफ मूव किया तो वापस मेरे को स्टार्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे, सॉरी. अगर आई स्टेप जाने में लगे तो आई स्टेप ही आने में लगेंगे. एक्स एक्सेस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना स्टेप मेरे को जाने में लगा, सपोज मैं 5 से 3 पे गया तो 5 से पहले मैं 4 पे गया, 4 से मैं 3 पे गया, कितना स्टेप लगा, 1 2. अब मुझे 3 से 5 पे आना है, क्या करूंगा, 3 से 4 पे जाऊंगा, 4 से 5 पे आ जाऊंगा, खत्म. तो 2 स्टेप जाने के लगे, 2 स्टेप आने के लगे, तो टोटल कितना लग गया, स्टार्ट पोजीशन से आई पे जाने पे, आई स्टेप्स चल के लेफ्ट जाने पे और वापस आने में 2 इंटू आई लग गया, राइट. 2 इंटू आई लग गया ना. मैं स्टार्ट माइनस आई पे गया, स्टार्ट माइनस आई से वापस स्टार्ट पे आ गया, तो 2 इंटू आई टोटल स्टेप्स खर्च हो गए, और जितने भी यहाँ पे फ्रूट थे मैंने सारे उठा लिए. तो मेरे पास स्टेप्स कितने बचे राइट में जाने के लिए मेरे पास स्टेप बचे टोटल जितने मैं स्टेप्स एटमोस्ट जा सकता था, यानी कि के, एंड के में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2i, जो कि स्टेप में लेफ्ट में ऑलरेडी जाके खर्च कर चुका हूँ, राइट. तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ r इज लेस देन
0, जो कि ये केस होगा नहीं बिकॉज मैंने मिनिमम ऑफ के कॉमा स्टार्ट किया, बट दिस फॉर सेफ साइड उस टाइम पे नहीं किया था मैंने, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं एक चीज और देखता हूँ कि भाई जो आर है, हो सकता है कि मेरा आर इतना बड़ा हो कि स्टार्ट पोजीशन से आई लेफ्ट जाने तक और वहां से वापस आने तक जो 2i स्टेप्स है, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी मेरा आर जो है वो मैक्सिमम एन और स्टार्ट के बीच में जितना डिफरेंस है उसके भी आगे जा रहा है। हो सकता है ऐसा, राइट? सपोज मेरी जो मैक्सिमम पोजीशन थी वो 5 थी, और मेरी स्टार्टिंग पोजीशन 3 थी, और मेरा आई इक्वल टू 1 है, तो मैं 3 से 2 पे गया, 2 से वापस 3 पे आ गया, तो मैंने 2 स्टेप्स खर्च कर दिए। और सपोज मेरा के की वैल्यू थी 20,000, तो 20,000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? 18। 20,000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19,998। अब 3 से मैं 5 पे मैक्सिमम 2 ही स्टेप जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास स्टेप्स कितने बचे हैं? 19,998। तो दिस इज यूजलेस, राइट? सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं मेरे साइज से, वेक्टर के साइज से आगे ना निकल जाऊं, मैं मिनिमम उठा रहा हूं कि भाई जितने स्टेप्स मेरे पास आर अलाउड स्टेप्स है, आर स्टोर्स द स्टेप्स अलाउड इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ, यानी कि जितने स्टेप्स लेफ्ट है उतने ही स्टेप्स अलाउड है। और मिनिमम मतलब कि या तो आर कम हो कि भाई जो स्टेप्स अलाउड है वो कम है, या फिर मेरी नंबर लाइन ही खत्म हो जा रही है। 2 इंटू 10⁻⁵ मैक्सिमम एन से मैक्स एन -1 माइनस स्टार्ट, मैं स्टार्ट पोजीशन से मैक्स एन -1 तक ही जा सकता हूँ, तो उनमें जितना डिस्टेंस है, अगर उससे ज्यादा आर है तो फिर मुझे उससे ज्यादा आर की जरूरत ही नहीं है, तो मैं उतना आर कर दूंगा। अगर उससे कम आर है तो वो तो चलेगा, है ना? देन आई चेक कि आर प्लस स्टार्ट इज लेस देन मैक्स एन। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट से आर स्टेप्स राइट में जाऊंगा, तो मुझे ये भी देखना है कि भाई आर प्लस स्टार्ट जो है वो लेस देन मैक्सिमम एन है या नहीं, है ना? तो वो चेक किया मैंने यहाँ पे, और अगर वो मैक्स लेस देन मैक्स ऑफ एन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा लेफ्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ i-1। ये चीज समझनी जरूरी है, ये चीज समझनी बहुत बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है, मैंने क्या कहा कि इस लूप में जो भी i की वैल्यू है, मैं उतना लेफ्ट जा रहा हूँ स्टार्ट से, ठीक है? तो मैं स्टार्ट से आई लेफ्ट गया, तो मुझे कितने फ्रूट मिले? स्टार्ट से सपोज आई की वैल्यू 2 है, तो मुझे कितने फ्रूट मिले? वी ऑफ स्टार्ट, -1 एंड वी ऑफ स्टार्ट -2। तो जो भी सम है, वी ऑफ स्टार्ट -2 प्लस वी ऑफ स्टार्ट -1 प्लस वी ऑफ स्टार्ट, इतना फ्रूट मुझे मिल गया लेफ्ट, 2 लेफ्ट चलने पे। अब इतना फ्रूट कौन स्टोर कर रहा है? मेरा प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है, राइट? लेफ्ट ऑफ 2 क्या स्टोर कर रहा होगा? लेफ्ट ऑफ 2 स्टोर कर रहा था, लेफ्ट ऑफ 2 स्टोरिंग, कैसे प्रीफिक्स सम निकाला था? v ऑफ 2 प्लस लेफ्ट ऑफ 3, राइट? यानी कि लेफ्ट ऑफ 2 में सम है v ऑफ 2 प्लस v ऑफ 3 प्लस v ऑफ 4 का, ये मतलब स्टार्टिंग पोजीशन तक का, राइट? वो सम है। तो मैं डायरेक्ट ये देख सकता हूँ कि भाई आई डिस्टेंस यहाँ तक चलने पे मेरे पास कितने फ्रूट्स आ गए, तो स्टार्ट माइनस आई आ गए, क्योंकि मैं स्टार्ट माइनस आई पोजीशन तक जाऊंगा अगर मैं आई स्टेप्स लेफ्ट में चल रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं आर स्टेप्स राइट में जा रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट प्लस आर पोजीशन पे पहुंच पाऊंगा। एंड मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, स्टार्ट से लेके स्टार्ट प्लस आर तक कितने फ्रूट्स आए, तो वो मेरे राइट जो एरे है उसमें प्रेजेंट है प्रीफिक्स सम में, तो मैं उसमें ले लूंगा, वो ले लूंगा। अब लेफ्ट ऑफ स्टार्ट माइनस आई में भी जो स्टार्टिंग पोजीशन के फ्रूट है वो काउंट हुए, राइट ऑफ स्टार्ट प्लस आर में भी स्टार्टिंग पोजीशन के फ्रूट काउंट हुए, तो मैं उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया यहाँ पे। दैट्स इट। और मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा कि भाई अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो वो मेरे आंसर में स्टोर हो जाए, अदरवाइज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे आंसर में रहे, राइट? तो ये लेफ्ट के लिए है। मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब मैं राइट में जाना शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, आई लेस देन 0, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ के कॉमा मैक्स एन -1 माइनस स्टार्ट, क्योंकि या तो मैं के स्टेप सारे चल सकता हूँ, या फिर मैं मैक्स एन -1 माइनस स्टार्ट, मैं मैक्सिमम इतने ही स्टेप चल सकता हूँ, राइट? मैक्स एन -1 माइनस स्टार्ट। तो अगर के उससे भी बड़ा है तो मेरे को कोई परवाह ही नहीं है, अगर के उससे छोटा है तो हाँ मुझे के पे डिपेंडेंट होना है, ठीक है? एंड आई प्लस प्लस, तो पहले मैं एक 0 स्टेप राइट में जाऊंगा, फिर 1 जाऊंगा, फिर 2 जाऊंगा, फिर 3 जाऊंगा, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही बिल्कुल जैसे लेफ्ट में किया था। एंड देन अब मैं आई स्टेप्स राइट की तरफ चला गया, तो अब मेरे पास लेफ्ट में जाने के लिए कितने स्टेप्स बचेंगे? आई स्टेप अगर मैं राइट में गया तो मुझे वापस आने के लिए भी आई स्टेप देने पड़ेंगे, तो 2 इंटू आई स्टेप्स तो मेरे खर्च हो गए। 2 इंटू आई स्टेप्स खर्च होने के बाद मैं वापस स्टार्ट पोजीशन पे खड़ा हूँ, यानी कि अब मेरे पास स्टेप्स कितने बचे? के -2 इंटू आई।
तो ये L स्टेप्स, ये जितने स्टेप्स मेरे पास लेफ्ट में जाने के लिए बचे हैं, मैं उतने स्टेप्स में लेफ्ट में चला जाऊंगा। तो मैं ये देखूंगा कि भाई सेम कंडीशन है, जैसे मैंने ये देखा था कि भाई कहीं मेरा L जो है वो 19,000 है और स्टार्ट पोजीशन 2 है, तो मैं उतना 19,000 तो पीछे नहीं जा सकता, तो मैं मिनिमम ले लूंगा L कॉमा स्टार्ट की। फिर मैं ये चेक करूंगा कि भाई स्टार्ट माइनस L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करूंगा, अपना आंसर अपडेट कर दूंगा लेफ्ट ऑफ स्टार्ट माइनस L। स्टार्ट से मैं एल एल लेंथ इधर गया हूँ, तो जितने भी फ्रूट्स स्टार्ट माइनस एल से लेकर स्टार्ट तक है वो सब मैं ले लूंगा। फिर मैं राइट में आई डिस्टेंस गया था, तो मैं स्टार्ट प्लस आई तक, स्टार्ट से लेकर स्टार्ट प्लस आई तक जितने फ्रूट आए हैं वो ले लूंगा। और अब जितने स्टार्टिंग पोजीशन पे फ्रूट थे वो 2 बार काउंट होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो और मेरा आंसर अपडेट कर दिया। एंड एट द एंड आई जस्ट रिटर्न माय आंसर। यहाँ पे ओवरफ्लो का कोई सिचुएशन नहीं है, बिकॉज फ्रूट्स हर जगह पे 10⁴ है, एंड फ्रूट्स की लेंथ जो है 10⁵ है। तो अगर सपोज मैक्सिमम फ्रूट्स ही रखे जा रहे हैं हर जगह पे, तो 10⁴ इंटू 10⁵ वो 10⁹ हो जाएगा। तो वो इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर दैट, राइट। सो इसमें ओवरफ्लो का कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स चेक अगर वो पास हो रहा है तो ओके। ऑलराइट, इट गॉट एक्सेप्टेड। सो दिस वाज द आइडिया कि भाई पहले तुम के स्टेप्स लेफ्ट में जाओ, फिर उस तरफ थोड़ा सा कम कर दो, फिर उस तरफ थोड़ा और कम कर दो, उस तरफ थोड़ा और कम कर दो, और जितने भी स्टेप्स बच रहे हैं उतना तुम राइट में चले जाओ। दैट्स इट, दिस वाज द सिंपल आइडिया, दिस वाज द आइडिया। काफी सिंपल आइडिया था, बस इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो थोड़ी सी, यू कैन से अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इसके सॉल्यूशंस की लिंक मैं गिटहब पे डाल दूंगा, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड if you guys have any doubt, any kind of in any question, feel free to ask in the comment section. I'll reply to it as soon as I can. Okay, all right, thank you, have a nice day, and thanks for watching the video.